You're listening to Fitness in Focus, a podcast that delves into simple strategies to balance work and wellness, helping you make every day your best day. Hello guys, welcome to Fitness in Focus. मैं हूं जफर and I welcome you to yet another episode. Today's episode is about one of the very popular discussions on the internet. Yes, you guessed it right. Supplements. The holy grail around which there are thousands of myths built over decades. Supplements comes in various forms like powder, capsules, liquid, but I tell you, it's not as complicated as it looks and sounds, and neither it's very simple. It's all about understanding what your body needs and how to correctly provide it. जब भी फिटनेस की बात होती है, जिम के आसपास या सोशल मीडिया पे कुछ टर्म्स हर किसी को सुनने को मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन शेक्स, क्रेटीन, BCAs, मल्टीविटामिन्स, फैट बर्नर्स और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है. बट वॉट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो इज वॉट एग्जैक्टली दे आर और वेन डू वी नीड इट. द मिथ्स अराउंड सप्लीमेंट्स आर वेरी स्केरी एंड द रिजल्ट्स दैट यू सी आर वेरी टेम्पटिंग. आज हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे थोड़ी डिटेल में. तो अगर आपको सप्लीमेंट्स के बारे में क्लैरिटी चाहिए, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. Let's start with the big names that are the first to come in radar of anybody starting their fitness journey. It was first to come on my radar when I started doing gym, and in my 12 years of wellness journey, I have lost the count of the number of questions I have answered about it. Yes, correct. The protein shakes. The protein shakes are by far the most popular supplements in the market. ये whey, casein, soy या plant-based sources से बनता है. And it does not help you build your muscles, contrary to the popular belief. At least not directly. It's a dietary supplement, which means when what you eat is not sufficient to complete the protein intake your body needs, you take a scoop or more of a protein shake. अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करते हो तो आपको रफली 1.6 to 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 70 केजी है तो 112 to 154 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत होती है. अब चिकन ब्रेस्ट या पनीर के थ्रू ये मीट करना हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता. आई मीन, लेट्स बी ऑनेस्ट, यू कैनॉट ईट 5-6 मील्स अ डे व्हेन यू आर स्लॉगिंग इन द ऑफिस. इसलिए प्रोटीन पाउडर एक कन्वीनियंट सॉल्यूशन बन जाता है. बट नेवर एवर थिंक दैट इट कैन रिप्लेस योर मील. ऐसा कभी नहीं हो सकता दैट इफ यू टेक 4 scoops ऑफ प्रोटीन एंड स्किप योर मील्स यू विल बी हेल्दियर. नाउ, when you take anything, it goes through your digestive systems and puts it into work to digest and release the required nutrient from it. And protein shakes are highly concentrated. A scoop of 32 gram contains about 24 to 26 grams of protein. So more protein implies more stress on your digestive systems. I take around 1 to 2 scoops of protein every day, depends on what my goal is. Is it leaning or gaining? I like to depend 90% on my diet, whether I'm leaning or trying to shed some. So, analyze your daily activity. Is it on the higher side? Analyze your body weight and the food that you have. And then accordingly adjust your protein powder intake. But if you take my opinion, try it doesn't exceeds more than 2 scoops a day. Now, let's talk about the second most popular supplement in our radar, creatinine. Creatinine is something that our body synthesizes on its own. And its work in your body is to boost your ATP levels. ATP stands for adenosine triphosphate. So that means it provides you that extra kick to lift a bit heavier or run a little faster. Research के हिसाब से creatinine monohydrate is one of the safest and most researched supplements. But everything comes with the pros and cons. Creatinine hydrates your body and increases your water retention level. Therefore, it becomes very important to drink more water when you're on creatinine so as to flush out that extra water from your body. Creatinine is not something that you should be using always. Give a couple of months of break, at least after consuming 1 box of creatinine, or for that reason, any supplement. Give yourself a break after using it for some time so that your body performance does not becomes dependent on it entirely. Our body has this habit, and
only use any supplement when you cannot fulfill your dietary requirements with your food. लेकिन क्रिएटिनिन के अराउंड एक मिथ ये भी है कि क्रिएटिनिन लिवर और किडनी को डैमेज करता है। रियलिटी ये है कि अगर आप हेल्दी हैं और रिकमेंडेड डोजेज में ले रहे हैं तो ये कम्प्लीटली सेफ है। बस हाइड्रेशन का ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि क्रिएटिनिन वाटर रिटेंशन करता है। आप अगर किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ करते हैं तो वो आपको बॉडी को ज़रूर हार्म करेगा। कोई भी चीज़ सेफ तभी है जब उसको एक कंट्रोल्ड वॉल्यूम में लिया जाए, वो या तो सप्लीमेंट हो या फिर कोई और चीज़। अब्यूज ऑफ एनीथिंग और ओवर यूज ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। नाउ मूविंग टू थर्ड मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट इन द मार्केट, BCAs। और अब BCAAs के बारे में बात करते हैं, यानी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, लियोसिन, आइसोलियोसिन और वैलिन। ये सप्लीमेंट्स रिकवरी और मसल सोरनेस को रिड्यूस करती है, स्पेशली अगर आप भूखे पेट वर्कआउट करते हो या आपका प्रोटीन इनटेक कम है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट से सफिशिएंट प्रोटीन ले रहे हैं तो BCAs की ज़रूरत शायद आपको ना पड़े। तो ये एक ऑप्शनल सप्लीमेंट है, नॉट अ नेसेसिटी। BCAs are considered essential because unlike non-essential amino acids, your body cannot make them. Therefore, it is essential to get them from your diet. So there are foods that provides you BCA like fish, eggs, beans and lentils, etc. BCAs make up a large chunk of body's total amino acid pool. Together, they represent around 35 to 40% of all essential amino acids present in your body, and 14 to 18% of those found in your muscles. Contrary to most other amino acids, BCAAs are mostly broken down in the muscle rather than in the liver. Because of this, they are thought to play a role in energy production during exercise. BCAAs play several other roles in your body. First, your body can use them as building blocks for protein and muscle. They may also be involved in regulating your blood sugar levels by preserving liver and muscle sugar stores and stimulating your cell to take in sugar from your bloodstream. What's more is, BCAs may help reduce the fatigue you feel during exercise by reducing the production of serotonin in your brain. Now, fat burners and multivitamins. फैट बर्नर्स को तो लोग एज अ मैजिक पिल समझते हैं। रियलिटी ये है कि बिना कैलोरी डेफिसिट के कोई फैट बर्नर कभी काम नहीं करेगा। अगर आपको वेट सच में लूज करना है तो आपको 70% अपने डाइट पे डिपेंड करना पड़ेगा। इनफैक्ट इन माय ओपिनियन, फैट बर्नर्स आर नॉट अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। इफ यू वांट टू लूज योर वेट फास्टर, एंगेज इन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स या फिर एक्सटेंसिव कार्डियो कीजिए। Whenever your body stops changing and reaches a plateau, try to change your diet and the style of workout first before choosing a supplement. Now comes multivitamins. Multivitamins एक सेफ बेट है अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन डाइट्स में विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है। मल्टीविटामिन्स ये गैप्स फिल करते हैं। There are a number of multivitamins available in the market. Consult a doctor first and then choose your multivitamin safely. अब सवाल ये है कि क्या सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है? The simple answer is not always. सप्लीमेंट्स का पर्पस है आपकी डाइटरी गैप्स को फिल करना, लेकिन आपको पहले अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ेगा। अगर आप अर्ली 20s में हैं तो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द सप्लीमेंट्स, बिकॉज देन आपकी बॉडी को सप्लीमेंट्स की आदत हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेट 20s में हैं या फिर अर्ली 30s में हैं और अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं और सिर्फ फैट बर्नर्स या प्रोटीन शेक्स पे डिपेंड करते हो तो बिना एक्सरसाइज किए इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सप्लीमेंट्स तब ज़रूरत बन जाती है जब आपका वर्कआउट काफ़ी इंटेंस हो या आप स्पेसिफिक गोल्स अचीव करना चाहते हो, जैसे मसल गेन या एंड्योरेंस इंप्रूव करना, या आपका जो डाइट है वो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। योर बॉडी सिंथेसाइजेज ऑल द न्यूट्रिएंट इट नीड्स बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड यू कंज्यूम। सो लेट्स से अगर आप किसी भी सप्लीमेंट के बारे में बात करें, वो प्रोटीन हो, मल्टीविटामिन हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो या अमाइनो एसिड्स हो, तो आपका बॉडी हर एक तरह के सप्लीमेंट और न्यूट्रिएंट को सिंथेसाइज खुद से खुद करता है। तो जब आप यंग होते हैं, आप अर्ली 20s में हैं या फिर 18-19 का एज है आपका और आप जस्ट अभी वर्कआउट करना स्टार्ट किए हैं, तो योर बॉडी इज वेरी केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड यू ईट and extract maximum nutrient from it.
But as you age, your metabolism decreases. And what happens is your digestive system is not as effective. Okay, so जैसे जैसे आप एज करते हैं, लेट्स से आप 30s में गए एंड देन 35 गए, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उतने अच्छे से वर्क नहीं करता है. ओके, तो आपको वो न्यूट्रिएंट 100% उस फूड से नहीं मिल पाता है, तो आपको सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करना पड़ता है. सो एनी एलियन प्रोडक्ट दैट यू टेक will be digested in the liver and therefore puts a pressure on your digestive system. Therefore, only take supplements if there is no alternative. And when you're taking a supplement, then drink a lot of water to wash out its negative effect. Otherwise, they will end up doing more harm than benefit. Now, एक interesting चीज़ ये है कि supplements का impact men और women के लिए अलग अलग हो सकता है. मेन के लिए प्रोटीन और क्रिएटिनिन मसल बिल्डिंग के लिए हाईली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन विमेन के लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल हो सकते हैं, स्पेशली अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हैं. सप्लीमेंट्स डजंट मेक द वर्कआउट्स इजियर फॉर यू. यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट इफ यू आर टेकिंग अ सप्लीमेंट. अदरवाइज इट वोंट गिव यू द रिजल्ट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट. विमेन का फोकस ज़्यादातर लीन मसल और एंड्योरेंस पे होता है, तो उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनका सप्लीमेंटेशन बैलेंस्ड हो. सप्लीमेंट्स लाइक BCAs एंड मल्टीविटामिन्स उनके रिकवरी और इम्यूनिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. चलिए, नाउ इन आवर नेक्स्ट सेक्शन लेट्स बस्ट सम मिथ्स दैट आर बिल्ट अराउंड द सप्लीमेंट्स. मिथ नंबर 1, प्रोटीन शेक्स कॉजेज किडनी डैमेज. अगर आपकी किडनी हेल्दी है और आप रिकमेंडेड डोजेज ले रहे हो तो कोई डैमेज नहीं होता, लेकिन अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें. जैसे मैंने पहले भी कहा था, ओवर यूज और अब्यूज ऑफ एनी सप्लीमेंट और एनी अदर थिंग इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी. मिथ नंबर 2, क्रिएटिनिन कॉजेज ब्लोटिंग. ये सच है कि क्रिएटिनिन एक्चुअली वाटर रिटेन करता है, लेकिन ब्लोटिंग काफी माइल्ड और टेम्पररी होती है. नाउ मिथ नंबर 3, BCAs आर नेसेसरी फॉर एवरीवन. नॉट एग्जैक्टली. अगर आपकी डाइट सफिशिएंट प्रोटीन प्रोवाइड कर रही है तो BCAs की खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन लो प्रोटीन डाइट्स के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है. सप्लीमेंट्स लेने का एक रूल है ये कि आपको हाइड्रेशन और वर्कआउट शेड्यूल इन सिंक होना चाहिए. अगर आप क्रिएटिनिन ले रहे हो या फिर प्रोटीन ले रहे हो तो हाइड्रेशन का ध्यान रखना मैंडेटरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा. वर्कआउट की बात करें तो सप्लीमेंट्स का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका रूटीन कंसिस्टेंट हो. रैंडमली सप्लीमेंट्स लेना बिना गोल और स्ट्रैटेजी के इज एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज एज यू नो दे आर नॉट चीप. गुड सर्टिफाइड सप्लीमेंट्स हैव अ प्राइस. एक अच्छी सी प्रोटीन विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 1.5K to 2K for a kg. So बिना गोल, विजन और जानकारी के पैसे उड़ाना is no wisdom, my friends. Today I'll share with you something that once my fitness mentor told me. Know first about what you are putting in your body. तेरे बॉडी में क्या जा रहा है, उसका क्या इफेक्ट होगा, ये जाने बिना और सेटिस्फाई हुए बिना कभी भी कुछ भी कंज्यूम मत करना, चाहे कोई कुछ भी बोले. So please guys, do your research, analyze your body before you put anything inside it. और आजकल तो और भी सप्लीमेंट्स आ गए हैं मार्केट में, जैसे कि पेप्टाइड्स, गट हेल्थ पाउडर और भी नहीं जाने क्या क्या. तो मेरा बोलना ये है कि डोंट जस्ट लिसन टू देयर एडवर्टीजमेंट एंड मेक योर चॉइस. रिसर्च अबाउट इट, कंसल्ट अ डॉक्टर इफ रिक्वायर्ड. आई डोंट नो किस ब्रांड का टैगलाइन था, बट इट सर्टेनली फिट्स हियर. चूज वाइजली, लिव वेल. तो गाइज ये थी बात सप्लीमेंट्स के मिथ्स, फैक्ट और उसके यूजेस के बारे में. द बॉटम लाइन इज, सप्लीमेंट्स सिर्फ एक टूल है, मैजिक नहीं. अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डाइट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हाइड्रेशन एज वेल. अपनी बॉडी को समझना, डाइट और हाइड्रेशन का ध्यान रखना और प्रॉपर वर्कआउट रूटीन फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. दीज आर द प्राइमरी थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. सप्लीमेंट्स आर नॉट, नो मैटर वॉट योर ट्रेनर टेल्स यू. अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं. मैंने अपना ईमेल ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. टिल देन, स्टे फिट, स्टे फोकस्ड एंड कीप ग्राइंडिंग.